بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ بار بار ریفائنڈ شوگر اور کاربوہائیڈریٹ سے بنے ہوئے کھانے بیکری کی چیزیں کھانے سے، ہوٹلنگ کرنے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اوبیسٹی، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تقریباً ہر تیسرا فرد فیٹی لیور کا شکار ہے۔ لیور یعنی جگر آپ کے خون کو مسلسل صاف کر رہا ہے اور ہارمون بناتا ہے اور جسم میں موجود ٹاکسنز یعنی زہریلے مادے کو بریک ڈاؤن کر کے یعنی ختم کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تقریباً ہر تیسرا بندہ فیٹی لیور کی بیماری میں مبتلا ہے، جس میں فیٹ یعنی چربی لیور میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جگر میں فیٹ کا جمع ہونا پورے باڈی سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ فیٹی لیور سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ہارمونز کا امبیلنس ہو سکتا ہے، بیلی فیٹ یعنی پیٹ کے گرد چربی جمع ہو سکتی ہے یعنی موٹاپا، شوگر، ایچنگ یعنی خارش ہو سکتی ہے اور امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسے فوڈز کے بارے میں بتاؤں گا جن کے استعمال کرنے سے جگر میں سے چربی صاف ہوگی اور یہ لیور کو ری جنریٹ کرنے اور ہیلدی بنانے میں ہیلپ فل ہوں گی۔ جگر سے چربی صاف کرنے اور اسے ہیلدی بنانے میں پہلے نمبر پہ جو فوڈ ہے وہ ہے ایلیم ویجیٹیبلز یعنی چھلکے دار سبزیاں، جن میں اونین یعنی پیاز، گارلک، لہسن، شیلک، چائو، لیکسز اور سکیلین ہے۔ ان ایلین ویجیٹیبلز کو فرائی کر کے یا سوپ بنا کر استعمال کریں یا سیلڈ میں یعنی را کچی سبزیاں کھائیں، جن سے لیور کلین اور صاف ہوگا اور بلڈ سے ہارمفل ٹاکسنز ختم ہوں گی۔ ایلینز میں کافی مقدار میں سلفر کمپاؤنڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان سبزیوں کا ٹیسٹ اینڈ سمیل پنجنٹ ہوتی ہے اور یہ سلفر کمپاؤنڈ جگر کو بائل پروڈیوس کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ بائل فیٹ کی بریک ڈاؤن میں ہیلپ کرتا ہے اور ٹاکسنز کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی فیز 1 اینڈ فیز 2 میں ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایلیم ویجیٹیبلز جو ہیں یہ بائل کی مدد سے پوائزنس سبسٹانسز لائک کیفین، الکوہول، پیسٹیسائڈز، پلاسٹک، ڈرگز اور دوسری انفلیمیٹری پوائزنز کو بلڈ میں ڈی ٹاکسیفائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اور ہارمفل سبسٹانسز کو ہارم لیس سبسٹانسز میں تبدیل کر کے پخانے یا یورین کے ذریعے ایکسکریٹ کرا دیتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو فوڈ ہے وہ ہے ایگز یعنی انڈے۔ اب انڈے خاص طور پہ دیسی انڈے، اگر آپ جگر سے فیٹ اور انفلیمیشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں کم از کم 2 دیسی انڈے زردی سمیت استعمال کریں۔ اگر دیسی انڈے نہیں مل سکتے تو دوسرے فارمی انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زردی سمیت۔ انڈوں میں نیچرل کولین کا ایک بہت بڑا سورس ہے جو کہ لیور سیل کی میمبرین کو مضبوط کرتا ہے اور جگر کا فنکشن امپروو کرتا ہے۔ کولین لیور میں بائل بنانے اور ایسیٹل کولین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ ہیلدی ڈائجیشن اور برین فنکشن میں ہیلپ کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ انڈے ہاف بوائل جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ انڈے کی زردی میں نیوٹرینٹس ضائع نہ ہوں۔ انڈوں میں 9 اسینشل امینو ایسڈ ہوتے ہیں جو باڈی کی پروٹین بنانے یعنی مسکولر اینڈ بونی سٹرکچر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں۔
तीसरे नंबर पे जो खुराक है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी क्रूसीफेरस वो वेजिटेबल हैं, वो सब्जियां हैं जिनके पत्तों में क्रॉस जो है वो बना होता है, जैसे कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, कैबज, बंद गोभी, ब्रोकली, मस्टर्ड ग्रीन यानी सरसों, बीट्स हैं, चिकंदर, रेडिश यानी मूली और केल वगैरह। क्रूसीफेरस वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिगर की हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अगर आप जिगर में से फैट ख़त्म करना चाहते हैं तो डेली इनमें से कोई ना कोई एक सब्ज़ी लाजमी इस्तेमाल करें। इन सब्जियों में मौजूद केमिकल्स लीवर को ग्लूटाथायोन बनाने में हेल्प करते हैं जो कि एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि लीवर सेल को कंप्लीटली हील करने और रीजनरेट होने और डीएनए को डैमेज होने से बचाने में मदद देता है। चौथे नंबर पे जो फूड है वो है माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन सब्जियों के वो पत्ते या कोंपले हैं जो बीज बोने के यानी ज़मीन में डालने के 2 दिन से लेके 7 दिन के अंदर तक उगते हैं, जैसे ब्रोकली के स्प्राउट्स या कोंपले या एरुगोला यानी तारा मीरा के पत्ते या साग वगैरह। ये माइक्रो ग्रीन बहुत अच्छा एंटी कैंसर इफ़ेक्ट रखते हैं क्योंकि इनमें पूरी तरह पकी हुई सब्जियों की बनिस्बत 100% ज़्यादा सल्फोराफेन होता है और ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स यानी कार्सिनोजेंस को डिटॉक्सिफाई करने में लीवर की मदद करता है, जैसा कि टोबैको स्मोक, अल्कोहल और खुराक में मौजूद हर्बिसाइड्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। इन माइक्रोग्रेन्स में एक एंजाइम मायरोसिनेज होता है जो कि बॉडी में विटामिन सी और सल्फोराफेन को जज़ब करने में मदद देता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप घर में इन सब्जियों के बीज क्यारियों में खुद उगाएं, ख़ास तौर पर ब्रोकली, रेडिश यानी मूली और एरुगोला यानी तारा मीरा का साग और उनके पत्ते सलाद या पकी सब्जियों पर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करें तो इन सब्जियों में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स को जज़ब करने में मदद देंगे। 5वें नंबर पे हर्ब्स एंड स्पाइसेस। जड़ी बूटियों और मसालों में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिगर के फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं, जैसे सिलीमेरीन फैटी लिवर और सिरोटिक लिवर के फंक्शन को बेहतर करता है और अगर साथ शुगर हो तो इसको भी कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर है टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी में केमिकल करकुमिन होता है जो लिवर की इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। रोजमेरी में रोजमेरिनिक एसिड होता है जो लिवर को टॉक्सिन्स और पॉइजनस फूड से महफूज रखता है। फिर सौंफ है यानी फेनल में एनीथोल होता है जो बाइल को पतला यानी डाइल्यूट करता है और गॉल ब्लैडर स्टोन बनने और बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन रोकने में मदद देता है। इसी तरीके से सिनामोन यानी दालचीनी में सिनामेल्डिहाइड होता है जो शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद देता है और लिवर में फैट डिपॉजिट होने को रोकता है। इसी तरीके से डेंडलियन फ्लावर जो है उसमें टेरेक्सासिन हेल्प्स इन बाइल प्रोडक्शन एंड प्रिवेंटिंग फैट डेपोजिशन इन लिवर। इसी तरीके से मोरिंगा यानी सुहांजना में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो डिफरेंट टॉक्सिन्स और मेटल को डिटॉक्सिफाई करते हैं और जिगर को हेल्दी बनाने में मदद देते हैं। 6ठे नंबर पे जो फूड है वो है ग्रीन या पेपरमिंट टी। जिगर को बेहतर काम करने के लिए ज़रूरी है कि जिगर में से ब्लड का फ्लो बेहतर हो, ब्लड थिक ना हो। लिवर को प्रॉपर हाइड्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम
डेली 1 लीटर मिनरल वाटर इस्तेमाल करें ताकि जिगर में से ब्लड फ्लो फ्लुएंट और मुनासिब रहे। उसके साथ साथ आप रोज़ाना 1 से 2 कप ग्रीन टी लें, ख़ास तौर पर सुबह सवेरे। इसमें मेंथोल होता है जो कि बाइल डक्ट्स और पित्ते के मसल को रिलैक्स करता है, जिससे बाइल फ्लो बेहतर रहता है और बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करने में मदद देता है। ग्रीन टी में एक केमिकल कैटेकिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है और जिगर की सोजिश को दूर करके उसके फंक्शन को स्मूथ रखता है। 7वें नंबर पे हैं बेरीज। बदकिस्मती से 80% से ज़्यादा पैकेज जंक फूड्स में कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप होता है जो कि कंसनट्रेटेड फ्रूट शुगर है, जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं। इसकी वजह से जिगर में फैट जमा होना शुरू हो जाती है। ताहम जो बेरीज में फ्रुक्टोज होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल है क्योंकि इसमें विटामिन सी और दूसरे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इसे हजम करने में मदद देते हैं। इसलिए अगर आप फैटी लीवर से बचना चाहते हैं तो रिफाइंड शुगर से बने हुए फूड से परहेज करें, ज़्यादा मीठे फ्रूट्स ना लें, उनकी जगह रोज़ाना 1 कप बेरी ले लें टू सेटिस्फाई योर स्वीट क्रेविंग, जैसे ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, रेसबेरी है, ब्लूबेरीज। आप 1 कप बेरीज को 1 गिलास पानी में मैश करके चंद कतरे स्टीविया ड्रॉप्स डाल के सोडा की जगह एक मज़ेदार मीठा मशरूब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वें नंबर पे है सावर क्राउट या किमची। 8वें नंबर पे जिगर को साफ करने और उसकी सोजिश को कम करने के लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट फर्मेंटेड कैबेज है, जो ख़ास तौर पे सावर क्राउट या किमची हफ्ता में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट मिलता है। ये फर्मेंटेड वेजिटेबल्स विटामिन सी का द रिचेस्ट सोर्स है और इनमें हेल्दी लाइव प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो गट में कॉलोनीज बनाते हैं। विटामिन सी लीवर में ग्लूटाथायोन को बूस्ट अप करती है, जबकि प्रोबायोटिक बाइल को रिसाइकिल करके कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करते हैं और अंतड़ियों को टॉक्सिन से पाक करते हैं। 9वें नंबर पे है हेल्दी फैट्स, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एवोकेडो बटर। इस वीडियो में मैंने जितने भी सब्सटेंसेस बताए हैं जो लिवर को क्लीन एंड नीट करते हैं वो फैट सालुबल हैं। इसका मतलब है उनको एब्जॉर्ब होने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। यही वजह है जो कुक्ड वेजिटेबल और सैलड लेते हैं उनके लिए आपको हेल्दी फैट्स यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ग्रास फेड बटर या एवोकेडो चाहिए, क्योंकि ये लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज करते हैं जो कि लिवर क्लींजिंग के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। लिहाजा रोज़ाना सैलड में 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें या एवोकेडो, लेमन और ओनियन की चटनी बनाकर उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव मिलाकर इस्तेमाल करें। ये सब बाइल की एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे और जिगर की इन्फ्लेमेशन दूर करेंगे और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करेंगे। 10वें नंबर पे लिवर को क्लीन एंड नीट करने के लिए कुछ मुतफर्रक चीज़ें हैं, जैसे एस्पैरागस यानी मूसली और कैलरी यानी अजवाइन। इन दोनों में ल्यूटिलिन होती है जो जिगर से फैट और स्कार टिश्यू को रिमूव करती है। इसी तरह मशरूम जो हैं उनमें ग्लूटाथायोन होता है जो कि एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है और जिगर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसी तरह टोमेटोज उसमें लाइकोपीन होती है। लाइकोपीन जो है वो जिगर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से लेमन आप इस्तेमाल करें तो लेमन में सिट्रेट होता है जो कि सिट्रेट जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से प्रोमीग्रेनेट
وچ از ویری گڈ فار لیور، یعنی انارج ہے یا اس کا جوس لے لیں. اور اسی طریقے سے کیرٹ، اس میں بیٹا کیروٹین ہوتی ہے وچ امپرووز یور امیونٹی، امیون فنکشن. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فاسٹنگ کریں اور جو ہے جنک فوڈ سے، کاربوہائیڈریٹ سے پرہیز کریں تو آپ کا جگر جو ہے اس میں چربی جمع ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوں گے. ریگولرلی اپنی واک کریں، ایکسرسائز کریں اور کاربوہائیڈریٹ سے پرہیز کریں. بہت شکریہ.